Hello and a very good evening to one and all present here. I am Dr. Ashima Bagaria, and I take immense pleasure in welcoming the guests and the participants to the MUJ Leadership Webinar Series, Education for Gen Z, Generation Z as we call it. It's an intellect conceived by Pro-President, Manipal University, Jaipur, Professor N.N. Sharma. Live from the prism of literature is the third in this webinar series. And we have amongst us columnist, world-renowned author and director, Nehru Centre, London, Sri Amish Tripathi ji, who will be enlightening us with his thoughts and also sharing with us his perspective towards literature. Welcome, sir. Without taking any minute further, I request Registrar Manipal University, Jaipur, Professor H. Ravi Shankar Kamath, for the welcome address. Please, sir. Good evening, everybody. On the behalf of Manipal University, Jaipur, I welcome you all to this leadership webinar series. Today's topic, Life from Prism of Literature. And today is our chief guest, Sri Amish Tripathi. I welcome you, sir. Amish Tripathi is an Indian diplomat, columnist, and world-renowned author. He is presently director, Nehru Centre, London. He has published the first book in 2010 and has written 7 books till date. His books have sold 5 million copies and have been translated into 10 Indian and 9 international languages. Some of them are Shiva Trilogy, The Immorals of Mehula, The Secret of Nagas, The Oath of Vaiputras, Ramachandra series, Ram, Scion of Ishau, Sita, the warrior of Mithila, Ravan, enemy of Aryavrata, Immortal India. And lot of awards are in his name, awards and recognitions. He is listed among the top 50 most powerful people by India Today, India's leading magazine in 2019. Forbes India has regularly ranked Amish among the top 100 most influential celebrities in India. Amish was also selected as fellow of a prestigious American program for outstanding leaders around the world in 2014. He is an honorary doctorate by Jharkhand Rai University for outstanding contribution to art and literature in 2019. Hello Hall of Fame Awards for Literary Excellence in 2019. Jashan-e-Yangistan Award in 2018. Ustad Bismillah Khan Award in 2018 for contribution to Indian culture. Kalinga International Literary Award 2018. Distinguished Alumnus Award 2017 from IIM Calcutta. Forbes Celebrity 100 list, top 100 list in 2017. Raymond Crossword Popular Fiction Award for the book Scion of Ishau in 2016. Amish is alumnus of prestigious Indian Institute of Management, IIM Calcutta. He worked for 14 years in the financial services industry before turning to writing. Thank you very much, sir, and I most welcome you to this webinar. And we have with us Dr. G.K. Prabhu. He is the president, Manipal University, Jaipur. He was behind all these activities. He is the force behind all these activities. I most welcome you, sir. And we have a famous TV anchor, Mr. Puneet Sharma. He is driving this show from last 3 webinar series we are observing. Most welcome you, sir. And finally, I welcome all the participants, my colleague, friends. I welcome you all. Thank you. Thank you, Ashima. Over to you. Thank you, sir. I now request President Manipal University, Jaipur, Professor G.K. Prabhu, to share the insights of MUJ to the spectrum of participants. Okay. Once again, good afternoon to everyone, and special welcome once again to our guest, Sri Amish Tripathi ji, and also our own friend Puneet Sharma ji, and all the audience, including the faculty and the students of Manipal University, Jaipur. So, as Manipal University, Jaipur, it's launched in 2011 as a state private university in Rajasthan.
As we know, the Manipal is known for education and healthcare, and the place belongs in South Karnataka in Manipal. So it is more than about 6 decades in this education and healthcare. So with the request from the government of Rajasthan, there's a new university has launched in Jaipur in 2011. We wanted to do it, this particular university, differently by taking all the experience of other campuses of Manipal Group. When we started this campus, we thought that, okay, so let us build a green campus. There is always a myth that the green campus is always a costly affair. But this is something that which we did it differently and shown to the world that even the green campus can also be constructed and maintained just like any other campus. And it is also our pride just to mention that this is the first ever education university in India which has a LEED Platinum certification and also the Graha 5-star rating. And it is also pride that we keep telling these students as well as the faculty that what advantages and the key things that we must see while imparting the education and creating a new knowledge in the university setup. We started with a very small number of 300 students in the form of an engineering stream. And today we are very happy to inform in the 9th year of our operation, there are more than 8,000 students in the campus. And there are 5 different faculties that we have. Faculty of Engineering being the largest, Faculty of Sciences, Faculty of Design, Faculty of Arts and Law, and Faculty of Management and Commerce. Totally 5 faculties that we have. And we do different things as far as an education is concerned. For example, if we have wanted to change the curriculum, it is not that we cut and paste from any other university. We design and develop the curriculum which is best for us. And that is would be a competent, should be relevant education. There should be a flexibility. There must be a fun in learning. So these are the concepts that which we use it, and in a frequent period that we keep changing this curriculum. There is another point that we would like to highlight here that most probably when we do is an engineering, for example, it is a standalone engineering institution. When we talk about any media, most of the time it is a standalone. But because of the university setup and we have the opportunity to deal with the many streams, there is a lot of cross linkages, cross pollination, which happens in this university. And that is the flexibility that we keep giving to our students. So for example, if the engineering student also have an opportunity to learn from arts and law, and they go also for a little bit about media. So this is the flexibility that we brought, and I'm sure that there is a large number of humanities courses are also available for the students who study in other programs also. So that is the beauty of it. And in the recent one, in the quality, which is basically is the National Assessment and Accreditation Council, for the first time that we went with the quality assurance. And we would be very happy to inform all of you that the Manipal University Jaipur is the first ever university in the whole Rajasthan state to get a NAC A+ accreditation. And this also, it shows that the quality is something which is also very important. Lot of emphasis is given for the research, whether it is for a faculty research or is a fundamental research or a student research. Effort is being done for international linkages, more than about 70 countries, universities that we have a strong relations for the collaboration at the student mobility, faculty mobility, as well as the international research collaboration. The very nice industry connect that we also have it not only for an engineering, for other programs including media, hotel management, and management programs too. And the another point, the alumni, although we are a young university, but we keep hand-holding our alumni. They are also helping us coming back to the institution and also telling us what is the best thing to do it moving forward.
And during the COVID education, there is something really happened, and we have used this as an opportunity, also moved into an online education. And due to the recent change in the guidelines, we are also an eligible university to launch the online programs, not only for the campus-based, as a new program altogether we can start. And during this particular point, we also thought that how do we connect a larger group of people, whether it is our students, the prospective students, their parents, and our own faculty. The concept of having this webinar came into a picture by inviting the eminent people across the country in the various fields. It need not be in the regulatory, it can be in the film, it can be in the art, it can be in the many other fields. So we thought that we invite them, we will discuss with them, we will deliberate on a particular topic, so that there would be a wide variety of interest that which we can do it. And today there is one such kind of a webinar, and I would be very happy and excited to hear this discussion on the particular topic with Sri Amish Tripathi ji. And of course, most of the time it will be very well, navigated by our own friend Punit Sharma ji. And this discussion is which is very exciting. We keep getting and although it would be a third of such a webinar series, but there's a lot of interest which is already being built. And I'm very happy. From the first 30 years, I was there in main Manipal in Karnataka, and I have a lot of feedback which is coming from that campus to Punit Sharma ji. And they are telling that, okay, there is a large number of students and my own friends there are also now participating actively, continuously, and in this particular series. I'm sure that would be a very happy note for all of us. And I must also thank all of you for making this happen. And it is my pleasure to take part in this, and also a very pride to give some kind of an highlights of Manipal University, Jaipur. So thank you very much, and look forward for this very interesting deliberation on the topics on today's session. Thank you very much. Thank you, Professor G.K. Prabhu. कल से जिस कदर लोगों के फोन कॉल्स, SMS, WhatsApp मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, अमित सर से मिलना है, we'll be able to see he's not in India. I'm answering. मैंने एक ही बात कहा, 4 बजे आ जाइए, सब कुछ अपने आप पर्दा खुल जाएगा. मुझे उम्मीद है इस क्राइसिस में आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रख रहे होंगे, और गवर्नमेंट की जो भी एडवाइजरीज टाइम टू टाइम जारी होती रहती हैं, उनका पूरा पालन कर रहे हैं. स्टे सेफ, स्टे एट होम, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले. इस पूरी लॉकडाउन की यात्रा में, इस कंपल्सिव ब्रेक में, हमने अपनी इनवर्ड जर्नी को अच्छे से एक्सप्लोर किया है. बहुत सारा पढ़ा है, बहुत कुछ देखा है, और जब तक लिखा नहीं जाता हम देख नहीं सकते. हम जो भी कुछ आज स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी कृति है. और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए धन्य भाग है कि मैं अमीश जी के साथ दूसरी बार रूबरू हो रहा हूँ. पिछले वर्ष जब आपकी बुक आई थी रावण, उसके कुछ 10-15 दिन बाद ही हमने मुलाकात की थी DD नेशनल पर. एंड 1 साल में ही शिव जी की इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी, ये कभी सोचा ना था. Thank you, Amish ji, for accepting our request on a short notice. You agreed to be with us despite of a gap of time zone. वैल्यूएशन में काफी पहले से ही एक्सप्रेशन, यानी कि परमानेंट एक्सप्रेशन की एक खास जगह रही है. चाहे वो रॉक या स्टोन पर हो, ताड़पत्र पर हो, वॉल पेंटिंग पर हो, या फिर कागज, और अब डिजिटल फॉर्म. कहीं ना कहीं कलम की, यानी कि एक्सप्रेशन की आवश्यकता शुरू से महसूस होती रही है. यानी कि ये लिटरेचर को हम आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग भी कह सकते हैं. अमित जी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये लिटरेचर, यानी कि दिस आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन थॉट प्रोसेस. पुनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद. और आप जो भी ऑल द ऑनर्ड गेस्ट्स एट Manipal Jaipur University, Prabhu ji, Ashima ji, everyone. Thank you so much, Amitabh ji. Thank you so much for having me. पुनीत जी आपने सही कहा इस विषय पर कि भाई why are stories so important?
कहानियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये भाषा में क्या करूं, खिचड़ी करूं कि अंग्रेजी करूं कि हिंदी करूं? मतलब आपके खिचड़ी स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है। खिचड़ी स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। चलिए खिचड़ी में थोड़ा घी भी होना चाहिए। आप थोड़े मिठास से ट्राई करते हैं। तो ये देखिए ऐसा है कि there is this very famous Western author called Muriel Mckinser who said that the universe is not made up of atoms. The universe is actually made up of stories. Okay, it's a wonderful way of looking at the world. जैसे आप देखेंगे हमारी जो भारत माँ की जो संस्कृति है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस में, प्री ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस में एकमात्र एक भारत माँ ही है जो आज तक खड़ी है, जिंदा है. All other cultures which began civilization with us in ancient times, Mesopotamia, Egypt, Hellenic, Greece, सब के सब ध्वस्त हो गए, सब मर गए. They're all museum pieces now. Even China, actually the civilization as we know it today started only some 2,500 years ago with Emperor Qin. तो भारत देश में ऐसी क्या खास बात है कि सिर्फ हम जिंदा हैं अभी तक? वो इकबाल का जो शेर है आपने सुना होगा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा. कुछ बात तो है हमें कि हम मरते नहीं हैं, हम अभी तक जिंदा हैं. आक्रमण तो बहुत हुए हमारे ऊपर, मेनी इन्वेजन्स, violent invasions, intellectual invasions. I think there are many reasons why we are still alive till today. कुछ reasons ऐसे हैं कि भाई हमारे जो पूर्वज थे, our ancestors were very brave, they never stopped fighting. Zoroastrian Persia जो था, one of the greatest civilizations of the ancient world, जब अरबों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, when the Arabs attacked them, सिर्फ 30-50 साल में पूरी की पूरी सभ्यता सब समाप्त हो गई, सब खत्म. जो बाकी है सब हमारे भारत देश में है, कोई बेचारे भाग के यहाँ पे आ गए. जो पारसी जो है यहाँ पे इंडिया में, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल ज़ोरास्ट्रियन पर्शियंस. पर्शिया, ईरान में तो सब ध्वस्त हो गए, सब उनके जो फायर टेम्पल्स है सब जला दिए गए, सब जो यूनिवर्सिटीज है, सब उनके जो गाथाएं थी सब जला दी गई, कुछ बाकी नहीं है. So yes, maybe our ancestors were very brave and they kept fighting. It's not that the ancient Persians weren't brave, but the ancient Persians after some time they just surrendered. Our ancestors never gave up. लड़ते रहे, 1000 साल हो गए, लड़ते रहे, हार कभी नहीं मानी. क्योंकि इंसान हारता कब है? जब हार वो मान ले. ठीक है भाई, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता रहता है. Some battles you'll win, some battles you'll lose. ये भी एक रीजन हो सकता है. दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई शायद देयर इज नो सेंट्रल हेड टू कट ऑफ इन इंडिया. ऐसा नहीं कि भाई अगर एक शहर तबाह कर दिया तो पूरी देश बिखर गई. जैसे पर्शिया में ऐसा था या ग्रीस में ऐसा था कि भाई अगर एथेंस और स्पार्टा तबाह कर दिया तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ध्वस्त हो गई. हमारे यहाँ पे तो इतने कई आईटी लोग हैं यहाँ पे, यू नो द वैल्यू ऑफ अ बैकअप. करेक्ट, हमारे यहाँ इतने बैकअप्स थे. लेकिन ये तो कई रीजंस हैं, बट वन ऑफ द मेन रीजंस आई थिंक वी आर स्टिल अलाइव इज आवर अटैचमेंट टू आवर स्टोरीज. हमारे जो पूर्वजों की जो कहानियां थी, इतिहास जो था हमारा, जो पौराणिक कहानियां थी, उससे हमें इतना लगाव है कि हम उसे सुनने में कभी उबते नहीं है, कभी थकते नहीं है. बार बार वो कहानियां सुननी है हमें. And we want to hear it in different interpretations again and again and again. Okay. तो आप देखेंगे जो रामायण, जो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी टेलीविजन सीरियल, हाल में फिर से टेलीकास्ट हुआ आपके दूरदर्शन में. और भाई 35 साल पहले जब पहली बार जो वो टेलीकास्ट हुई थी, प्रसारण हुआ था उसका, उस जमाने के मापदंड से भी प्रोडक्शन वैल्यूज वर काइंड ऑफ ओके. भाई उस जमाने में इतना पैसा था नहीं. बिल्कुल. आज के मापदंड से तो प्रोडक्शन वैल्यूज आर फ्रैंकली नॉट दैट गुड. लेकिन फिर भी व्यूअरशिप वाज 77 मिलियन. करेक्ट.
करीबन 8 करोड़ लोगों ने उसको देखा. दैट इज मोर देन गेम ऑफ थ्रोन्स, बिगेस्ट टेलीविजन सीरियल इन द वर्ल्ड. दैट इज मोर देन व्हाट गेम ऑफ थ्रोन्स गॉट इन द एंटायर वर्ल्ड. उससे ज्यादा व्यूअरशिप रामायण के रीटेलीकास्ट को सिर्फ भारत देश में मिली. It just shows how attached we are to our culture. हमें बार बार वो कहानियां सुननी है. This is a source of our strength. क्योंकि अगर हम अपनी कहानी भूल गए, ये जिक्र करना जरूरी होगा, पूर्वजों को भूल गए, ये जिक्र करना जरूरी होगा कि नए इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड यूथ का सबसे ज्यादा है अभी. यानी कि 35 साल पहले हम ये मान सकते हैं कि आबादी में प्रतिशत ऐसे लोगों का ज्यादा रहा होगा जो 40 प्लस है, लेकिन आज तो 25 से 40, 25 से 45 की लोगों की प्रतिशत ज्यादा है. आज भी वो कहानियां उतनी रिलेवेंट है. जैसा आपने कहा प्रोडक्शन वैल्यू कि वो एक HD क्वालिटी नहीं है, फिर भी भाई ये मतलब हजारों साल से हो रहा है कि जो भी पेरेंट्स की जो पीढ़ी है वो हरदम कंप्लेन करती है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं इन्हें तो हमारी संस्कृति में कुछ लगाव नहीं है. यू नो, कालिदास जी का एक प्ले है मालविकाग्नि मित्रम, उसमें भी यही सीन था. ओके, कि एक बाप कंप्लेन कर रहा था कि मेरा बेटा निकम्मा, हमारी संस्कृति में कुछ लगाव नहीं है उसको. आज भी लोग कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है क्योंकि हमारी हर नई युवा पीढ़ी हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है. उनका देखने का नजरिया हाँ अलग हो सकता है, तो उसमें कोई खराब बात नहीं है, ठीक है, अलग नजरिया है, लेकिन लगाव उतना ही है. शायद शरीर में थोड़ी तब्दीली आ गई हो, लेकिन आत्मा वही प्राचीन पुरानी है. एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस वी आर अलाइव, बिकॉज ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा. अगर हम अपनी प्राचीन कहानियां भूल गए मतलब हम अपने पूर्वजों को भूल गए, और अगर हम अपने पूर्वजों को भूल गए तो हमारी जड़ें कट गई. तो फिर हम वैसे ही बन जाएंगे जो मतलब रूटलेस पीपल, जो पूरी दुनिया भर में हमें देखने को मिलता है. लेकिन हमारी जड़ें हजारों साल तक गड़ी हुई हैं. जो 6000 7000 साल पहले जो पुरुषोक्त हमारे पूर्वज करते थे वेद में, आज भी वैष्णव पंथी लोग आज भी वही चांट कर रहे हैं. जो तो मतलब सी हाउ एंशिएंट आवर कल्चर इज. लार्ज पार्ट ऑफ इट इज हम अपनी कहानियों को भूलते नहीं हैं. क्योंकि हम अपनी कहानियों को भूलते नहीं हैं, हम अपने पूर्वजों को नहीं, इसलिए मिटती नहीं हस्ती हमारी. इतिहास के झरोखों से आपने एक अनमोल चीज आज इस पूरी दुनिया को भेंट की है, लीजेंड ऑफ सुखदेव के नाम से. सुहेलदेव, हाँ. तो वो बिल्कुल सुहेलदेव, सॉरी, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव. उसकी पूरी निश्चित तौर पर एक किताब लिखना एक लंबी यात्रा होती है, 2 से 5 वर्ष की यात्रा होती है. कई बार सब्जेक्ट हमारे मन मस्तिष्क में के पीछे कहीं घर किया हुआ रहता है और समय आने पर वो सतह पर आता है. इस पूरी किताब के बारे में, इसकी यात्रा के बारे में, इसके पात्रों के बारे में, इसके चरित्र के बारे में, इसमें टेक होम क्या होगा, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दें. देखिए किताब तो हाँ किताब है यहाँ. तो ये है सुहेलदेव की किताब, लेजेंड ऑफ सुहेलदेव. ये जरा पास से दिखा देता हूँ आपको, इसमें तो शायद मिरर हो रहा होगा. तो ये कल रात मिडनाइट में रिलीज हुई ये किताब. तो राजा सुहेलदेव कौन थे? किंग सुहेलदेव. अरे वाह, आप तो पिक्चर दिखा. अरे वाह, जी बिल्कुल, आपके प्रशंसक हैं सब लोग. थैंक यू. देखिए एक इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियन है संजीव सान्याल जी, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है सरकार में, इतिहासकार भी हैं, किताबें लिखते हैं. उनने एक सच बात कही थी कि जो इतिहास हमें सिखाया जाता है वो हमारे इन्वेडर्स की कहानी है, हमारी कहानी नहीं है. हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सिखाया जाता है, भाई वो तो आक्रमणकारी था, विदेशी था. अरे हमें महमूद गजनी के बारे में सिखाया जाता है, हमें मोहम्मद घोरी के सिखाया जाता है, जो हमारे लोग थे जिनने उनके साथ लड़ाई की, उसके बारे में हम क्यों नहीं सिखाते. और एक बात मेरे हिसाब से एक बहुत ही भीषण गलती हमारे एस्टैब्लिशमेंट हिस्टोरियंस ने की. आप देखेंगे कि जो अंग्रेजों का जो राज था उसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कहते हैं, क्रिश्चियन रूल नहीं कहते. लेकिन जो टर्किक कॉलोनियल रूल था उसे इस्लामिक रूल क्यों कहते हैं भाई? जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो राज थोड़ी कर रहे थे, राज तो टर्की कॉलोनियल कर रहे थे. करेक्ट.
जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल राज में इंडियन क्रिश्चियन थोड़ी राज कर रहे थे, राज तो अंग्रेज कर रहे थे, ब्रिटिश कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी गलती की है हमारी इतिहासकारों ने कि टर्की कॉलोनियल रूल को उनने इस्लामिक रूल बता दिया। दूसरी बात, आप हमारे पॉपुलर कल्चर में भी देखिए, मूवीज या उसमें अलाउद्दीन खिलजी को रणवीर सिंह दिखाया जाएगा, अकबर को पृथ्वीराज कपूर या ऋतिक रोशन दिखाया जाएगा। तो जो आम भारतीय जो हैं, ये कॉमन इंडियंस, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बिठा दिया जाता है। और दूसरी बात, आप बॉलीवुड पिक्चर में देखेंगे, जो ब्रिटिश को अगर दिखाएंगे तो किसी गोरे को ले आएंगे, बिल्कुल। हाँ, टॉम ऑल्टर को या बॉब क्रिस्टो को उसे दिखा देंगे, है ना। तो मतलब जब ये हमारे दिमाग में कहीं पीछे ये बिठा दिया गया है कि अंग्रेज तो हाँ विदेशी थे, है ना, टॉम ऑल्टर या बॉब क्रिस्टो, क्योंकि दिखते ही अलग थे, लेकिन कहीं बिठा दिया गया है हाँ अलाउद्दीन खिलजी तो रणवीर सिंह जैसा दिखता था, मतलब हमारा ही आदमी था, ठीक है, इंडियन मुस्लिम होगा। या अकबर हाँ ऋतिक रोशन की तरह दिखता था, मतलब हमारा ही तरह दिखता था, हाँ तो ठीक है, इंडियन मुस्लिम होगा, विदेशी थोड़ी था। एक्चुअली अगर आप देखें जो तुर्कियों को, टू अस, टू इंडियन आईज दे वुड हैव लुक लाइक चाइनीज, हमें चीनी की तरह दिखते वो लोग, ओके। चाइनीज कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन द टर्क्स एंड द चाइनीज, लेकिन हमें वो तुर्की चाइनीज की तरह दिखते हमें, ठीक है। तुर्की जो लोग हैं वो ओरिजिनली टर्की से नहीं आए हैं, वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। टर्की भी ग्रीक था, वहां पे ग्रीक लोग रहते थे, तुर्कियों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, जो मर्द थे उन सबको मार दिया और औरतों को मतलब शादी करके अपने बच्चे पैदा कर दिए, वो तुर्कियों ने वो किया, ठीक है। यहाँ पे जो आए वो भी मतलब अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनी, ये सब तुर्की थे। मुगलों को हम मुगल बुलाते हैं, लेकिन वो अपने आप को मुगल नहीं बुलाते थे, वो अपने आप को तैमूरिया बुलाते थे, मतलब डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, जो तुर्की था। अब हाँ ठीक है, ये इन्वेडर्स में जैसे अंग्रेजों के जमाने में भी था, कुछ लोग बहुत ही बुरे थे, रॉबर्ट क्लाइव डेलहाउजी बहुत ही बुरे थे, कुछ लोग हाँ थोड़े अच्छे थे, बेंटिंक मतलब अंग्रेज वाइसरॉय था, हाँ उसने थोड़े अच्छे काम भी किए, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये एकदम साफ है, बेंटिंक भी विदेशी था। हाँ ठीक है, अलबत्ता इतना क्रूर नहीं था, ही वाज नॉट दैट क्रूअल जितना रॉबर्ट क्लाइव या डेलहाउजी था, लेकिन विदेशी तो था, ठीक है। जो तुर्की जो आए थे, जिन्हें हम दिल्ली सुल्तान कहते हैं या मुगल कहते हैं, वो भी तुर्की थे, ठीक है। उनमें से कुछ जैसे अकबर इतने बुरे नहीं थे, अच्छे थे, कुछ बहुत ही क्रूर थे, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो हिटलर टाइम्स 100 थे, ओके, बहुत ही क्रूर, बहुत ही भयानक लोग, ठीक है। तो ये एक हमें समझना पड़ेगा कि वो इंडियन मुस्लिम्स नहीं थे, वो विदेशी थे, वो तुर्की थे, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन टू मेक, ठीक है। एंड देन इट कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन, जो तुर्की थे उनने अरब वर्ल्ड के भी ऊपर आक्रमण किया, जो अब्बासिद, जो अरब सिविलाइजेशन था, उन्हें ध्वस्त किसने किया था? ये तुर्कियों ने किया था। जो ग्रीस तो थे उन्हें मराया किसने था? ये तुर्कियों ने गए थे। चाइना भी जो मंगोल रूलर थे उनके फुट सोल्जर्स तुर्की थे। तो ये पूरे दुनिया भर पर आक्रमण कर रहे थे, हाँ भारत में भी आए थे, ठीक है। लेकिन बाकी सब मर गए, हम अभी तक जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे वीर योद्धा थे, हीरो थे। क्योंकि जब वो भारत में आए तो राजा सुहेल देव ने एक सेना इकट्ठा की, ओके, जिसमें उनने इट वाज अ मैसेज ऑफ यूनिटी, people of all religions, people of all communities, people of all castes, he united them into an army and he fought the Turks and he killed the invading army to the last man, okay। और मेरे हिसाब से इसीलिए राजा सुहेल देव की कहानी इतनी महत्वपूर्ण है। That is why we have to learn his story, because to me it is a message of unity and today more than ever we need that message। आज भी एक विदेशी देश में, मैं डिप्लोमेट हूँ तो मैं उस देश का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कौन सा देश है, ठीक है। वो घुसपैठ करने, हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है, आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। हमें एकजुट होना पड़ेगा, वी हैव टू बी यूनाइटेड। और राजा सुहेल देव से ये सीखना पड़ेगा
हम शांति प्रिय हैं, पहला वार हमारा नहीं होगा, लेकिन कोई हमें झापड़ मारेगा तो हम दूसरा गाल नहीं दिखाएंगे, कोई हमें झापड़ मारेगा तो हम मुक्का देंगे। पहला वार हमारा नहीं होगा, लेकिन आखिरी वार हमारा होगा। जब बात आन बान शान की हो तो we are not the kind of culture which will surrender. एंड किंग सुहेल देव से हमें ये सीखने की जरूरत है। उन्हें तुर्कियों को इतनी बुरी तरह से हराया कि 150 साल तक वो लोग वापस नहीं आए। 150 साल तक। In 1034 in the Battle of Bahraich, he destroyed the Ghaznavid Turks, the invading army, right down to the last man. हर एक इंसान को उनने मार दिया। ओके और 150 साल तक तुर्की वापस नहीं, उनकी हिम्मत नहीं बढ़ी वापस इंडिया आने में। बाकी सब दुनिया भर में जाते रहे, अरब वर्ल्ड में गए, वो जो उस जमाने का टर्की था एनाटोलिया, वहां पे गए, भारत में वापस नहीं आए। तो राजा सुहेलदेव से हमें ये सीखना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और कोई हमें झापड़ मारेगा तो शिव जी की कसम हम मुक्का वापस मारेंगे। पहला वार हमारा नहीं होगा, हम शांति प्रिय लोग, लेकिन हम मार खाएंगे नहीं। हमीद जी, आपने अभी जिस सवाल के शुरुआत में परसेप्शन की बात कही कि किस तरह से एक कैरेक्टर जो क्रिएट किया जाता है और वो हमारी मन मस्तिष्क में अमिट छाप ले लेता है, लेकिन प्रिज्म जब हम कभी भी जैसे किसी किरण या रेज के बीच में कभी जब प्रिज्म को इंटरसेप्ट करते हैं तो वो स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर देता है, जो कलर्स उसमें छुपे हुए हैं उनको अलग अलग निखार के ला देता है। लिटरेचर भी ठीक ऐसा ही है कि जो भी लेयर्स होती है या परसेप्शंस होते हैं या कलर्स होते हैं, डिफरेंट शेड्स होते हैं किसी भी राइटिंग में, वो निकल के सामने आ जाते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के लिए, सोसाइटी के लिए बेहतर होती है। What is your take on how literature helps to evolve an individual being to develop a better understanding towards self, towards life and society? पुनीत जी, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है आपने। एंड यू वुड हैव स्टडीड दैट, ये फिजिक्स में सिखाया गया था कि जो प्रिज्म है उसमें वाइट लाइट आती है तो उसे ब्रेकअप कर देता है और वो विबग्योर बन जाता है। तो 7 कलर्स जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग आ जाते हैं, रंग जो हैं, लेकिन हमें ये भी सिखाया जाता है that it is possible that if the 7 colors come together then a prism can unite it also into white light, right? तो मेरे हिसाब से इतिहास का काम ये है, जब हमें एनालिसिस करना है एनालिसिस करें, जब देश को जोड़ना है तो उस प्रिज्म का रोल करें कि जो इंद्रधनुष के जो अलग रंग हैं उन्हें साथ करके एक श्वेत एक रे निकले, कि जो हमारे देश के बाहर जो लोग हैं वो सब ये समझें हमारी जो भी अंदरूनी जो भी अनेकताएं हैं वो हैं, उसे हम सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन कोई दूसरा है तो उसके सामने हम एक हैं। ये एक बड़ा सुंदर हमारे यूपी बिहार में एक लाइन चलता है, आई एम श्योर पूरे सब जगह सबको मालूम होगा ये, कि कौरव 100 और पांडव 5, दूजा आए तो 105। तो हमें इतिहास भी ये लिटरेचर भी ये रोल प्ले कर सकता है कि कैसे देश को जोड़ने का काम किया जाए। जी अमित जी, जब भी कभी हम कुछ भी लिखने का काम शुरू करते हैं, इट इज रियली डिफिकल्ट। कुछ लोग छत पर चले जाते हैं। मुझे ध्यान है एक लेखक थे अज्ञे साहब, वो मचान पर बैठकर लिखते थे। फिल्म राइटर्स होटल के रूम में बंद कर लेते महीनों, कोई शिमला मंसूरी चला जाता है, कोई रात में लिखता है, कोई चाय का कप रखता है, कोई स्मोकिंग करता है। यू नीड सम पर्टिकुलर एनवायरनमेंट टू ट्रिगर द राइटिंग, स्पेशली द राइटिंग पार्ट। तो आप किस तरह से शुरुआत करते हैं, किस तरह से सब्जेक्ट का चयन करते हैं, और सबसे खास जो आपका सिग्नेचर है, आप कैरेक्टर के जो दूसरे अनछुए पहलू हैं, रावण की हम बात करें, ड्यूरिंग द डिस्कशन विल डिस्कस अबाउट मोर अबाउट द कैरेक्टर्स, किस तरह से आप शुरू करते हैं कि रस्सी का छोर मिल जाना वो सबसे मुश्किल काम होता है? देखिए भाई, कौन से विषय पर मैं लिखूंगा, किस सब्जेक्ट पे लिखूंगा, मैं हरदम ये कहता हूँ, मैंने कई बार कहा है, मुझे मालूम है कुछ लोग इसके ऊपर हंसते भी हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूँ कि
ना मैं खुद चयन करता हूँ, ना जो क्रिएटिविटी है वो मेरी है, कल्पना है वो मेरी है। मैं हरदम मानता हूँ कि ये सब शिव जी का आशीर्वाद है, क्योंकि मुझ में इतनी काबिलियत तो थी नहीं। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ के पहले मैंने कभी कुछ काल्पनिक कहानी, नो फिक्शन स्टोरी, आई डिड नथिंग। तो आई genuinely believe it is Lord Shiva's blessing, and I don't care what other people think of it. I genuinely believe it's the truth. So therefore then I don't decide what subject I'll pick up. Lord Shiva decides whatever appeals to me. मतलब he sent the message, मतलब I should write. How the characters also grow, you know, पात्र grow कैसे करते हैं, उनके अलग अलग पहलू कैसे आते हैं, that is also it just comes to me. मतलब पता नहीं शायद मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, बट लाइक आई ओपन द लैपटॉप एंड आई एक्चुअली सी द वर्ल्ड, आई कैन सी द कैरेक्टर्स, आई कैन हियर देयर थॉट्स, उनकी जो भावनाएं हैं उसे मैं महसूस कर सकता हूँ, आई कैन फील देयर इमोशंस, एंड आई जस्ट राइट व्हाट आई विटनेस, आई राइट व्हाट आई सी, सो दैट्स हाउ इट कम्स। तो भाई मेरी आत्मा में, मेरी जहन में तो वो पात्र और वो दुनिया, मतलब इट इज द ट्रूथ, and I'm just writing what I'm seeing, that's how I write. तो फिर काम जो है वो तो सब शिव जी करते हैं, मैं तो बस एक जरिया हूँ। जी, वेल सेड। कल योग दिवस भी है, और जैसा हम कहते हैं कि योग के जरिए आप और यूनिवर्स दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। हम फिजिक्स की भाषा में बात करें तो जब आपकी एनर्जी लेवल यूनिवर्स की एनर्जी लेवल के साथ सिंक हो जाती है तो आप एक्सेलेंस की तरफ खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। और जैसा आपने कहा कि यू रिसीव सिग्नल्स from superpower and automatically, you know, alignment of thoughts, you know, alignment of pen, it becomes, and it creates every step is creating a history. I mean, मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में ऐसा कोई लेखक शायद नहीं है जिसकी हर कृति अनमोल रही है, हर बार कुछ नया पल रहा है। और मैं सच में कहता हूँ, अपनी आत्मा से कहता हूँ कि आपका पेन का आशीर्वाद जो है लोगों पर बरसता रहे, और उस पेन पर प्रभु की कृपा हमेशा हमेशा बरसती रहे। You have been redefining mythological women characters in different light. Parvati is a warrior in Shiva trilogy. Sita is again a warrior in your Rama series. So where from you get these new perspectives? Especially like Sita जी का जो चरित्र है, वो रामायण में जो रामानंद सागर जी ने जैसे कंसीव किया उस चरित्र को, वो त्याग की प्रतिमूर्ति के बतौर किया. So how, where from you know find these new angles, new dimensions? नहीं, एक बात मैं एकदम साफ कर दूं, रामानंद सागर जी ने जो छवि दिखाई थी सीता माँ की, उस छवि की भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ. आई ऑफ कोर्स वर्शिप यू नो सीता माँ, बट देखिए रामायण के भी कई वर्णन है. रामानंद सागर जी ने कई हद तक रामचरितमानस पर यू नो आधार था उनका टेलीविजन सीरियल, कुछ हद तक वाल्मीकि रामायण पर भी, लेकिन फ्रैंकली अगर देखा जाए तो कई हद तक वो रामानंद सागर जी की रामायण थी, क्योंकि उनने कई बदलाव लाए थे. और हाँ, फर्क तो था उनके रामायण में, लेकिन भाई उनकी जो श्रद्धा है वो हर सीन पर झलक कर यू नो झलकती थी, दिखती थी. तो इसीलिए कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. क्यों होगी भाई? क्योंकि वो दिख रहा था कि वो श्रद्धा से बना रहे हैं, प्रेम से बना रहे हैं. ठीक है, अलग हुआ तो कोई नहीं, ये उनका पहलू है. यू नो, हरि अनंत हरि कथा अनंत. तो सीता माँ की दूसरे रामायणों में छवि अलग है. तो जैसे वाल्मीकि रामायण में ओरिजिनल, उसमें वो योद्धा नहीं है, शी इज नॉट अ वॉरियर, लेकिन काफी शक्तिशाली है, स्ट्रांग है. और कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने 3 रामायण की रचना की थी. एक तो है वाल्मीकि रामायण, सबने सुनी, और दूसरी है अद्भुत रामायण, और तीसरी है आनंद रामायण. तो और ठीक है, योग वशिष्ठ वो तो अलग है, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये जो 3 है, ये मेन 3 रामायण है. कहते हैं इसकी रचना वाल्मीकि जी ने की. जो अद्भुत रामायण है उसमें सीता माँ को एक वॉरियर के रूप में दिखाया गया है. उसमें 2 रावण हैं, और ज्यादा शक्तिशाली रावण इज द एल्डर रावण, ओके, जिसका वध सीता माँ ने किया. प्रभु श्री राम ने नहीं, सीता माँ ने. ओके, शी इज द वन हु किल्ड दैट एल्डर रावण. तो
गोंड रामायणी है एक, देयर इज अ ट्राइबल वर्जन ऑफ द रामायण जिसमें अगेन सीता माँ हैज बीन शोन एज अ वॉरियर. तो I can't, it will be wrong of me to say that I have created this, that I am the first one respecting women. It's not true. Our ancestors respected women. And our ancient culture is about respect to women. I've always said this, those of us who fight for women's rights are not being less Indian. In fact, we are being more Indian because that is what our original culture is. हमारे प्राचीन कई शास्त्रों में ये लिखा गया है कि भाई जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती उस देश को भगवान भी त्याग देते हैं. उस देश में किसी भी प्रार्थना का कुछ फल नहीं मिलता है. तो इट इज फाइटिंग फॉर इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इज एक्चुअली द जेन्युइनली इंडियन थिंग टू डू. तो आई एम ओनली रिवाइविंग एन एंशिएंट ट्रेडिशन. इट्स नॉट दैट आई एम डूइंग एनीथिंग न्यू. जी. Metaphors are always needed to express a story, be it film or be it text. Why the support of a metaphor is needed, and in what way it helps to build a story? देखिए मेटाफर क्या है. आपने एक बड़ा एक सुंदर ये अंग्रेजी लाइन सुना होगा, that a picture speaks 1,000 words. करेक्ट. तो मेटाफर क्या है कि जो बात शायद 100 शब्दों में या 200 शब्दों में कहने की जरूरत हो वही बात 5-6 शब्दों में कह दी जाए. करेक्ट. और हम जो भारतवासी हैं हम ये मेटाफर्स में तो बहुत माहिर हैं. हमारे मुहावरे हैं, हम जानते हैं. यहाँ ठीक है, हमें जैसे यूपी में कहते हैं हमें बतियाना बहुत अच्छा लगता है. We like talk a lot. We Indians are that way. हाथ बहुत हिलाते हैं हम लोग बात करते समय और कहते बहुत है बहुत ज्यादा. आपने देखा होगा हमारी लिटरेचर फेस्टिवल्स में जब कोई हाथ उठाता है प्रश्न पूछने के लिए, सबसे पहले तो वो भाषण देगा फिर प्रश्न पूछेगा. बिल्कुल. माइक मिला है तो उसका इस्तेमाल करें भाई. माइक मिला है तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम हाले दिल सुनाएंगे, सुनिए कि ना सुनिए. तो ये भी एक मतलब वी इंडियंस ये हमारा एक आचरण तो है, लेकिन एक दूसरा आचरण भी है कि हमें मुहावरे बहुत अच्छे लगते हैं. क्योंकि व्हाट इज अ मुहावरा? बेसिकली इट इज एफिशिएंट. जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई कौरव 100 और पांडव 5, दूजा आए तो 105. बस कुछ ही शब्दों में पूरा जो फिलॉसफी है वो पूरा समा गया उसमें. तो इट्स वेरी एफिशिएंट. तो और आप देखेंगे कि भाई मतलब ये देखा है मैंने अपने किताबों में, जो गुड रीड्स जो वेबसाइट है उसमें मेरे किताबों के कई वाक्य, many few sentences are taken out and put out there as quotes which people read, like even on Facebook, Twitter, Instagram मैं देखता हूँ लोग वो बना के वो शेयर करते रहते हैं. तो what it does is through a metaphor, through a very efficient route, through a few words we get a lesson, I guess, which is why we like it. So the literature has been a blueprint or a guiding path for society right from ancient time, be it the time of writers like great Tulsidas ji, Valmiki ji, Kalidas, Sant Kabir, and in modern context Robin Hood, Ashwin Sanghi, and many others, and the Amish. In what way, the writing created by can I please make a request? वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, कबीर, they are gods among writers. एक ही वाक्य में उनका नाम और मेरा नाम नहीं लेना चाहिए. मेरा वाक्य प्लीज अलग रखिए. They are gods among writers. मैं तो बस साधारण अमीश हूँ. ये जो आपसे सीखने की बात है ना, जो आपकी सहृदयता, आपकी स्माइल, आई एम टेलिंग यू, ये रेयर कॉम्बिनेशन है कि आप एक IIM काशी, IIM बैंकिंग एंड देन जो ईज कहता है कि ईज सहज होना सबसे मुश्किल है, और आपने वो बैरियर क्रॉस कर चुके हैं. आप इतनी सरलता से रहते हैं, इतने स्माइली रहते हैं आप. सो कमिंग टू माय पॉइंट, आई मीन इन व्हाट वे द राइटिंग ऑफ ऑल दीज हैव इवॉल्व्ड सोसाइटीज एंड इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस. देखिए, in some ways I think literature is a mirror to society,
And in some ways, literature is also the voicing of the hope of society. तो मतलब साहित्य जो है एक तरफ से हमें दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि आज के समाज का हाल क्या है, और दूसरे नजरिए से ये भी दिखा रहा है, ये भी दर्शा रहा है कि समाज के सपने क्या हैं, हम क्या बनना चाहते हैं 20 साल बाद, 50 साल बाद, हमें क्या बनना है, हमें कैसा देश देखना है. तो लिटरेचर प्लेज बोथ रोल्स. कि some hard questions which need to be asked should be asked, like in my books. You know, I'm not a very aggressive person, but in my own polite way, I try and raise questions. You know, कि how women are treated in today's India. मैं कई बार ये कहता हूँ, हमारे पूर्वज अगर हमारे पितृलोक से या स्वर्ग से देख रहे हैं, उन्हें शर्म आती होगी कि how we treat women today, because this is not the way our ancestors behaved. It is not the way our ancestors behaved. तो yes, we should show a mirror to society, but you know, जो नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है कि सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, ना ब्रुवात सत्यम अप्रियम, कि सत्य बोलिए लेकिन प्रेम से बोलिए, क्योंकि अगर आप घृणा से बोलेंगे कोई सुनेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है. प्रेम से बोलेंगे तो शायद कुछ लोग सुन ले और कुछ सुधार आ जाए. तो दैट इज वन एस्पेक्ट. द सेकेंड एस्पेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी डू वी वांट. आई एम अ वेरी 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 प्राउड इंडियन. मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है अपने देश से, अपने मिट्टी से, अपनी संस्कृति से. भारत देश जाता हूँ, यू नो, वापस आता हूँ. अभी यू नो, फॉर दिस इज द लॉन्गेस्ट आई हैव स्टेड अवे फ्रॉम इंडिया. आई हैव नेवर लिव्ड आउटसाइड इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक में अटका हुआ हूँ लंदन में. 4 महीने हो गए भारत माँ को देखे हुए. तो आई होपफुली आई विल बी एबल टू कम बैक सून. लेकिन मुझे भारत की मिट्टी, भारत की खुशबू बहुत प्रेम है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं दैट वी शुड हैव ड्रीम्स. जो इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके बारे में बात तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे. जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमसे ऑब्वियसली हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमें फीडबैक भी तो देते हैं ना. मेरा जो बच्चा है, 11 साल का बच्चा है, वो भी मुझे फीडबैक देता है. क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है. करेक्ट. और मैं जानता हूँ कि अगर मेरे माँ बाप, मेरा बच्चा मुझे कोई फीडबैक दे रहा है तो उसमें कोई एजेंडा थोड़ी है, वो मुझसे प्रेम करता है. दे वांट मी टू इम्प्रूव, दैट्स व्हाई दे गिविंग मी फीडबैक, एंड दैट्स हाउ वी विल इम्प्रूव. सो दैट इज आल्सो अ रोल दैट लिटरेचर मस्ट प्ले, दैट वी मस्ट स्पीक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी डू वी वांट टू बी, एंड देन दैट बिकम्स एन एस्पिरेशन, इट बिकम्स अ ड्रीम. एक सपना बन जाता है कि भाई राम राज्य क्या है, हम कैसे बनेंगे राम राज्य. तो इस बात पे चर्चा होनी चाहिए. That is another very important role literature must play. I try and do both to the best of my abilities. जी, एक अप्रोच ये है कि लिटरेचर समाज का आईना है, पथ प्रदर्शक है. जो करेक्शंस, जो फीडबैक के जरिए हम करेक्शन लाना चाहते हैं सोसाइटी में, वो लिटरेचर के जरिए या लेखन के जरिए आ सकते हैं. In what way writing for masses or class are different? The expression can be in the form of articles, books, script for movies, writing for digital platforms, for entertainment, information, or wisdom or evolving process. In what way these are similar and different? देखिए, इंसान तो इंसान होता है, स्पेशली हम जो भारतीय हैं. हाँ, कुछ लोग हैं हमारे भारत देश में जो मतलब जो कल्चरली इंडियन नहीं है, ठीक है. देयर आर सम हु आर, जिनकी जड़ें ज़्यादा लंदन में हैं, भारत देश में नहीं है, तो ठीक है, दे हैव अ चॉइस. मैं शायद उन लोगों के लिए नहीं लिखता हूँ मेरी किताबें, बट आई राइट मोर फॉर दोज हुज रूट्स आर इंडियन. बट द लैंग्वेज कुड बी एनीथिंग. लैंग्वेज अंग्रेजी हो सकती है, लैंग्वेज हिंदी हो सकती है. तो आई गेस देन द ओनली डिफरेंस in among the classes and the masses is what kind of language you will use. तो classes के लिए it will be शायद pure English, और masses के लिए it will be simple easy English. I always like to write in, you know, simple easy English. मुझे हिंदी में भी कोई कठिनाई नहीं है, तो हिंदी में भी आराम से मैं बातचीत कर लेता हूँ. लेकिन हाँ, अगर आप masses से बात कर रहे हैं तो थोड़ी सरल हिंदी होनी चाहिए. अगर ज़्यादा शुद्ध हो गई तो भाई सिर्फ खास लोगों को समझ में आएगी. हाँ, काशी का पंडित ही समझ पाएगा. तो थोड़ी सरल भाषा रखी.
जैसे अगर आप तमिल में भी लिख रहे हैं तो अगर आपने क्लासिकल तमिल कर दिया तो भाई आम तमिल लोगों के लिए बहुत कठिनाई हो जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता है। कुछ शब्द हैं जो संगम लिटरेचर में होंगे, लेकिन भाई आमतौर पे आज के आम जो तमिल हैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करते। तो इवन व्हेन यू आर राइटिंग इन तमिल आई गेस दैट्स द ओनली डिफरेंस, द लैंग्वेज। लेकिन मुझे लगता है वही सरलता है, फिलोसफी वो तो कॉमन ही है, हम सब भारतीय हैं जी। वही वजह है, उस सरलता के कारण ही आपकी लेखन का इतनी सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और वेल रिसीव्ड रहा है। ऐसा नहीं है कि किस खास वर्ग ने उसे स्वीकारा। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू कि काशी के बाद यूजुअली जब महाराष्ट्र में रहते हैं तो थोड़ा सा टोन में पानी मुंबई का चढ़ जाता है, और अब आप लंदन में रह गए लेकिन टंग ट्विस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। मुंबई का पानी भी जो थोड़ा राइमिक टोन होती है, हाँ ऐसा करने का वो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं मराठी एकदम अच्छे से समझता हूँ। और आप देखेंगे, क्योंकि देखिए जो मुंबई के बाहर या महाराष्ट्र के बाहर जो कई लोग हैं वो मराठी सिर्फ मुंबई वाली मराठी सुनते हैं। मुंबई वाली मराठी भी इतनी शुद्ध नहीं है। आपको शुद्ध मराठी सुननी है तो आपको पुणे जाना पड़ेगा। वो न और ण में जो फर्क जो होता है, ज और ज में जो फर्क होता है, वो शुद्ध मराठी आप सुनेंगे ना तो इतना आनंद मिलता है। लेकिन मुंबई क्या है कि सब जाएगा खाएगा पिएगा तो शुद्ध मराठी आपको मुंबई में भी नहीं सुनने को मिलती। शुद्ध मराठी के लिए आपको पुणे जाना पड़ता है या नासिक जाना पड़ता है या नागपुर जाना पड़ता है। शुद्ध मराठी आपको वहां पे सुनने को मिलती है। मुंबई में सब चीज का खिचड़ी है जी। सो जैसा हम कहते हैं कि ईश्वर ने माध्यम चुना अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, अमीश जी एक माध्यम बने। तो मैं तमाम मेरे साथियों से ये मैंने अभी निजी तौर पर ये बात मुझे छुई है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आई थिंक इफ वी अडॉप्ट दिस फलसफा ऑफ लाइफ, आई थिंक द जर्नी कैन बी मोर एनरिचिंग। और जो इल एलिमेंट्स हैं जो बहुत जल्दी कुछ पा जाने पर ये कंधे के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें वायरस आ जाता है बहुत सारा, फिर उसको एंटीवायरस लगाने में बहुत वक्त लगाना पड़ता है और उस बीच हम क्रिएशन को भूल जाते हैं। आई थिंक अमेजिंग, दिस फिलॉसफी इज रियली अमेजिंग। अमीश जी, आपने जो इतनी जल्दी ये सहजता प्राप्त कर ली, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। वंडरफुल। Now coming to the question from N.D. Mathur Sahab, literature being mirror of society, do you think that the kind of pulp literature is being created and that is why it's losing its charm? सॉरी, क्या नाम बताया आपने? प्रोफेसर N.D. Mathur। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर माथुर जी, देखिए ये हाँ, मैं शायद कुछ हद तक आपसे सहमत होऊंगा कि कुछ साहित्य है जो शायद इतना पॉजिटिव नहीं है, कुछ हद तक नेगेटिव हो जाता है, कुछ हद तक कुछ शायद थोड़े अश्लील भी हो जाते हैं। बट द वे आई सी इट, क्योंकि मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी को मानता हूँ, आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। And if you allow everyone to have freedom of expression, हाँ कुछ किताबें आएंगी जो हाँ ठीक है इतनी अच्छी नहीं है, पर अगर हमें पसंद नहीं है तब उसे ना पढ़ें। लेकिन what that also allows is for good books to rise. And let me explain the benefit of freedom through another route, through the route of democracy, गणतंत्र। क्योंकि अगर हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, नियंत्रण करने की कोशिश करें, तो सिर्फ बुरी किताबें नहीं मरेंगी, अच्छी किताबें भी मर जाएंगी। और हमारे जो पूर्वज थे, they used to believe in that, they used to believe in freedom of expression। अब नाट्य शास्त्र पढ़िए, उसमें जो it is, there's a very famous story in there, the first play ever conducted, जो obviously स्वर्गलोक में था। And apparently हुआ ये कि भाई when some of the actors started speaking, some of the divine people got offended by the play, so they said कि भाई रोको रोको रोको। And Lord Brahma came and then spoke, and then he said कि भाई ये जो मंच के अंदर जो हो रहा है, this is sacred, आपको नहीं सुनना है आप मत सुनिए, आप चले जाइए यहाँ से। लेकिन यहाँ पे people can say whatever they want. If you think about it, that is actually a note to freedom of expression। ब्रह्मदेव अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बात कर रहे थे, and
does that having freedom, does that system work? Let's think about it this way. Let me give you an example, not through literature, but through democracy. You do know that even Iran is technically a democracy, correct? And it is, and it is an ally of India. It has helped in many times. But in Iran, you know that people can stand for elections only once they get approval from the Supreme Council. There is a Supreme Council of Ulema which allows candidates to stand for elections. Okay. So many of the reformist candidates, young candidates are often rejected by the Supreme Council. Okay. And then after that, the candidates stand for election. So if you think about it, this is a democracy, but where an elite institution is controlling who can say what. इंडिया में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, जिसे इलेक्शन के लिए लड़ना है लड़े. ओके, देयर आर पीपल जो अनशंड जो ये मैनिफेस्टो लेके खड़े हो जाते हैं, मतलब अजीबोगरीब, मतलब देयर इज नो लिमिट टू कैंडिडेट्स इन इन इंडिया. अजीबोगरीब लोग इलेक्शंस के लिए खड़े हो जाते हैं. कुछ लोग का मैनिफेस्टो ये है कि भाई all companies should all be taken over by the government, or government should give free money and free jobs to everyone. भाई उसमें देश कैसे चलेगा? But they can say whatever they want, because ours is a completely freedom election. Elite does not decide कि कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, कौन कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा. जनता डिसाइड करेगी भाई किसको सपोर्ट करें, किसको नहीं सपोर्ट करें. करेक्ट? तो इन अ वे डेमोक्रेसी इन ईरान इज कंट्रोल्ड बाय द एलीट. डेमोक्रेसी इन इंडिया इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द एलीट. जनता जनार्दन डिसाइड करती है वेयर इज डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, ईरान और इंडिया. आंसर क्लियर है ना? तो शायद साहित्य में भी ऑल्सो वी शुड लेट दैट बी. I agree there are some books which I myself don't read. I know they're not. But my attitude is let all books be published. And Janta will decide. And I have complete faith in the Indian public. I have complete faith. ठीक है? शायद कुछ सालों के लिए शायद इधर डगमगा जाए, लेकिन हजारों साल से हमारी जनता सही चुनाव, सही डिसीजंस लेती आ रही है. तो we should have faith in our people. Whichever books they support are good books. ओके. और रिमेंबर हमारे मतलब संस्कृत में या शुद्ध हिंदी में क्लासिक बुक जो है उसका अनुवाद है कालजयी. कि when you translate that it means that which conquers time. Correct? So a book which conquers time is a classic. तो किताब जो 50 साल बाद या 100 साल बाद जो जिंदा रहेगी, that will be a classic. एंड अगर आप हमारे क्लासिक्स को देखें, कोई भी पल्प किताब है या 100 साल पहले जो आज तक जिंदा है? नहीं ना. क्लासिक्स तो वही हैं जिनमें आत्मा है, जिनमें डेप्थ है. तो हमारी जनता पर विश्वास रखिए जी. और अभिव्यक्ति की इस तरह के ये छुटपुट स्नैक्स जो है वो निश्चित तौर पर आते रहते हैं, और पूर्व समय से ही राक्षस हमेशा व्यवधान डालते रहे, लेकिन जीत अंत में सत्य की ही होती है. तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपकी इनर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होते हैं. जो इन सब में अटका रह जाता है वो आगे नहीं जा पाता. ये प्रकृति का नियम है. और उनको करने, जैसे हमारे गणतंत्र में होता है भाई, कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है. खड़े हो भाई, जनता डिसाइड करेगी. करेक्ट? तो किताबों में भी वैसा ही, फिल्मों में भी वैसा ही करना चाहिए. जिसे बनाना है बनाए, जनता डिसाइड करेगी. जी. और ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित तौर पर होने लगा है. हवाएं बदल रही हैं. लोग स्क्रिप्ट को तवज्जो देने लगे. आप 90 के दशक की फिल्में देखें, जो कंटेंट जिस तरह का फिल्म में होता था, प्योरली एंटरटेनमेंट, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, अनबिलीवेबल कैरेक्टर्स. आज के दौर में जो पिछले 4-5 सालों में हम देख रहे हैं, लोग स्क्रिप्ट को तरजीह देते हैं, कलम को तरजीह देते हैं. फिर ट्रीटमेंट और टेक्नोलॉजी तो बहुत बाद में आता है. सबसे पहले वो स्ट्रक्चर है, वो सोल है. पुनीत जी, अगर एक मैं प्रार्थना कर लूं, ये क्योंकि मेरा एक और प्रोग्राम भी आने वाला है, तो ये आखिरी सवाल हो सकता है. आखिरी दो सवाल जी. आखिरी प्रोग्राम में जाना है. जी. सो मैं यूथ के लिए खास तौर पे एक सवाल, फिर एक फास्टेस्ट 5 हम लेंगे. हाउ टू फाइंड एंड परस्यू पैशन, दैट योर पर्सनल जर्नी, out of might be compulsion, out of family pressure, you pursued something else, then you could find out what is your passion.
So how to find and pursue passion? ये youth के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. I think one of the key things to learn, and which is what I have, always believed, that you must have a balance between your mind and your heart. अगर आप सिर्फ दिमाग की सुनेंगे, the life becomes very drab. By the time you're 70, you'll be hating your life कि यार मैंने तो दिल की कभी नहीं सुनी, life is so boring. लेकिन अगर आप सिर्फ दिल की सुनेंगे, इधर उधर कूदते रहेंगे, आपको जिंदगी की मार भी बहुत पड़ेगी. Correct? It's a reality of life. So listen to both your mind and your heart. Let your heart decide the destination. Let your mind plot the journey. How is this in practice? So let me give you my example. I wrote my first 2 books along with my job. I come from a middle class family. बाप दादा का आशीर्वाद है, जायदाद कुछ नहीं है. Okay. So I was very clear that I am not going to just resign and just jump into writing, into lekhan just like that. कि भाई महीने के अंत में अगर बिल आ गए, मैं अदा नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या करूँगा? अपने बच्चे को बोलूँगा बेटा भूखे मरो क्योंकि डैडी इज डिस्कवरिंग हिमसेल्फ. ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ मैं. करेक्ट? यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. तो आई रोट माई फर्स्ट 2 books along with my job. I resigned from my job only when my royalty check became more than my salary. Correct? So that is listening to the heart and the mind. That's what you should do. Don't listen only to your mind. Life becomes very boring. Don't listen only to your heart. जिंदगी की बहुत मार पड़ेगी. Okay. So mind and heart दोनों की सुनिए और संतुलन रखिए, बैलेंस रखिए. जी. Now ready for fastest 5? चले. ये आप your कंट्रोवर्सी तो नहीं खड़ी कर देंगे ना? नहीं, not at all. Your favorite author new? Favorite author? देखिए, I've always said that if you have only one favorite author, you haven't read enough. You should have many favorite authors. But so आपने पूछा है तो I will try and answer that. Of the authors whose books I've read very recently, I've liked Ashwin Sanghi. My friend Ashwin Sanghi is Volt of Vishnu. I think it is a very good book. Thank you. मैं उन तक मैसेज आपका पहुंचाता हूँ. Your favorite author old? Favorite author old, again of the books I've read in the recent past. Pavan Verma is a diplomat. His book, Greatest Ode to Lord Ram. It is a study of the Ramcharitmanas. Wonderful book. Your favorite character from mythology or literature? अरे ये तो बहुत आसान सवाल है. शिव जी. भगवान शिव. Your favorite book written by others? Written by someone else. Yeah. This also is too difficult to answer because I always say if you have only one favorite book, you need to read more. But चलो ठीक है, आपने पूछा है तो River God by Wilbur Smith. Right. And the final question, your favorite work created by you and why? अरे नहीं, ये थोड़ी. देखिए, ये तो आप ऐसे पूछ कि मतलब इट्स लाइक आस्किंग अ फादर कि which children of his are his favorite. तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा. मैं यही कहना चाहता था कि इसका सवाल हो ही नहीं सकता. हर कृति अनमोल है और हर कृति में अमीश झलकते हैं और अमीश की संपूर्णता बिल्कुल जैसे नाक, कान, आँख ये सारे हिस्से हैं. तो अमीश जी का लिटरेचर जो है उस सबको पढ़ेंगे तब जाकर हम अमीश जी को समझ पाएंगे. इस नए रचना के लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं और पूरी टीम की मणिपाल टीम की तरफ से आपको अनेक कोटि धन्यवाद. और ये इस वायदे के साथ कि आज सिर्फ नाश्ता हुआ है, खाने भी बाकी है. जरूर. थैंक यू. प्रणाम. चलिए. Over to Amitabh ji for vote of thanks. On behalf of School of Media and Communication, Manipal University, Jaipur, I extend my gratitude towards new youth icon Mr. Amish Tripathi for such a thought-provoking session. Country asks for creativity like yours to reach its zenith. Thanks Professor Puneet Sharma to give us live and interactive session again. Cordial thanks to our Honorable President MUJ, Professor G.K. Prabhu. Sir, your leadership is guiding force for us. I extend vote of thanks to respected Professor Anand Sharma, Pro-President MUJ, who visualized this webinar series, Education for Generation Z. I would also like to extend my gratitude to respected Registrar Sir for providing us unconditional support. Thanks to IMAC-E for being our partner for this webinar series. Thanks Dr. Ashima for being a great anchor. I would also like to thank our admission cell for providing unconditional support. I can't forget to mention the role of our technology team. Thanks. I would like to thank
my creative teammates of School of Media and Communication. Above all, I would like to thank our enthusiastic audience, especially youth of this nation, as finally they will have to bring the change in society. Thank you, sir. Thank you. So, I hope the interaction was enlightening and everybody would have enjoyed the session. So this is all for today. I request everybody to sign off, and for the next session we will see you on 28th of this month, and that is Sunday. For more details, please have a regular visit to our site and social media handles.